Yes, you can. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat, Thank please. you, sir. Suchi, Yes, sir. you are from Uttar Pradesh, Gorakhpur. Yes, sir. What are 5 things in Gorakhpur that you like most? So, especially Gorakhpur is famous for Gorakhnath Mandir, and because sir, Gorakhnath is the founder of Nath Sampradaya, and second one is Sir Gita Press, which is biggest publisher of book in Asia, and I Sir Deen Dayal Upadhyay University, which is recently found NAC A plus plus from NAC. Two others? Sir Kushinagar Yes. for Gautam Buddha, and Sir Nauka Vihar, which Okay. is situated in east of Gorakhpur. Okay, Shuchi, before we begin any formal interview, we would like to know a little about yourself. Just introduce yourself. Sir, as you can see my biodata, my name is Suchi and I am from Gorakhpur in Uttar Pradesh. I completed my schooling from Kendriya Vidyalaya, Air Force Station, Gorakhpur, and after that I completed my bachelor's from Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University in biology honors, and then I completed my B.Ed also from Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University. About my hobbies, I like to singing, cooking, and dancing. Okay. What is your favorite dish? Sir, my usually I love to cook palak paneer because it is healthy. Okay, that you like most. And if it comes to singing, Yes, sir. what kinds of singing do you like much more? Sir, patriotic song. Patriotic song. Any genre or just patriotic? Just patriotic. No, sir. Sometimes I like to And okay, any singer? Sir, That is your favorite? normally I not follow any particular singer. I usually listen. You don't follow any, but there will be a number of singers, and definitely you must have heard a lot about them. Any particular who really sings you like more than anybody else? Sir, Lata Mangeshkar. Late Lata Mangeshkar. Late Lata Mangeshkar. Okay. Okay, your turn, sir. How do you handle a lazy student? Sir, firstly I found the reason, and then so उसके बाद मैं उसकी रिमीडियल टीचिंग करूँगी. पहले रीज़न जानने की कोशिश करूँगी, और जब रीज़न जान जाऊँगी तो उसका रीज़न उसके पीछे ये भी हो सकता है कि कहीं बच्चे को हेल्थ इशू हो, या फिर बच्चे सही से अरे धूप नहीं ले रहे हैं. पेरेंट्स से बात कर सकती हैं इसके बाद, और फिर उसके बाद अगर बच्चा ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो उसके बाद बच्चे को अपने टीचिंग मेथड में थोड़ा चेंज ला के मैं बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में या प्ले वे मेथड से पढ़ाने की कोशिश करूँगी. अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि हार्ड टीचिंग और स्मार्ट टीचिंग में पढ़ाने के लिए तो आप किसको चुनेंगे? सॉरी सर. स्मार्ट टीचिंग और हार्ड टीचिंग सर, स्मार्ट टीचिंग. कैसे क्या? सर, रिसेंटली ये चीज़ आईसीटी आ रहा है. आईसीटी एनईपी ने इंट्रोड्यूस किया कि हम अपने क्लासेस में आईसीटी का यूज़ करें, जिसके थ्रू बच्चे को रियल एक्सपीरियंस दिला सकें आईसीटी के थ्रू. केबीएस के बारे में आप क्या जानते हैं? सर, क्योंकि मैं केबीएस से ही पढ़ी हुई हूँ तो केबीएस कल्चर के बारे में मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, और जैसा कि केबीएस ना सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देता है, यहाँ तक कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी ध्यान देता है. जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत करवाई जाती है केबीएस में. एवरी सैटरडे दे कंडक्ट ओके, अगर आप केबीएस से पढ़ी हैं तो केबीएस विद्यालय की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था? सर, केबीएस आर्म फोर्स में जो रहते हैं उनके बच्चों के लिए, और जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल जॉब में है उनके बच्चों के लिए
ताकि वो इधर से या उधर कहीं जाए दूसरे स्टेट में तो सेम सिलेबस फॉलो हो रहा हो। सुची, आपका जन्म 15 नवंबर को हुआ है। जी सर। नवंबर मंथ के कोई और फेमस पर्सनालिटी जिसका जन्म हुआ हो? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? सर 14 नवंबर। उनके जन्मदिवस को किस नाम से जाना जाता है? सर बाल दिवस। क्यों ऐसा? सर उनको बच्चों से बड़ा प्यार था। उनको बच्चों से बहुत प्यार। बड़ा- क्या कोई आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है जो साबित करे कि उन्होंने बच्चों से अधिक प्यार था? सॉरी सर, आई कांट रिकॉल इट। सोचिए आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जी सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए? Sir, RNA, the full form of RNA is ribonucleic acid and the full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Sir, DNA डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है और RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है। क्रोमोसोम के फंक्शन के बारे में को बता सकते हैं? जी सर, इट इज़ सर ये जीन कैरी करते हैं एंड इट इज़ द इनहेरिट सर ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स को मतलब वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay, when you said full form of DNA and RNA, and you told that it is double standard or double strand? सर डबल स्टैंडर्ड। Double standard. स्ट्रैंडेड। Double stranded. यस सर, स्ट्रैंडेड। Okay. सॉरी सर। It's alright, doesn't matter. So it is double stranded. You said DNA is responsible for transferring genetic quality from one generation into another generation. If my grandfather had leprosy, is it transferable to the next generation through chromosomes? No sir, leprosy is not a genetic disorder. It is not transferable from one Can you generation. tell me about two genetically transferred diseases and two good qualities that can be found passing through genetic? Sir, first one is sickle cell anemia and sir another one is I can't recall it. Okay. And It is said when development of a child is takes place that there is a difference between development and growth. How do you find it? How development and growth differ from each other? In Hindi we call it वृद्धि और विकास. yes sir. क्या डिफरेंस है? सर वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जो होती है वो सब में लाइफ लॉन्ग चलती रहती है और वृद्धि विकास में ही इंक्लूड है। और सर एक ब्रॉड है विकास, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, मेंटल से लेके हेल्थ सब कुछ आ जाता है। और वृद्धि में एक स्तर के बाद वो सर इसमें हाइट आ जाता है जो कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हाइट में हम रखते हैं। ये Okay, I was growth में looking है। about your marks that you just secured right from 10th to B.Ed. In 10th you secured 83%, in intermediate 68%, in graduation 66%, and then finally in B.Ed or BTC whatever you did, it is 91%. What was the reason that you started very well and then slackness being over there, you secured only 68% and 66%? सर इन सर 12th में ड्यू टू सर हेल्थ इशू हो गया था एंड सर मुझे बीएड में जो साइकोलॉजी है उसमें इंटरेस्ट है, इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स उसमें इन्हेंस कर गए। That's it. साइकोलॉजी के जन्मदाता हैं कौन? साइकोलॉजी के जन्मदाता Who's father of psychology? सर सॉरी सर, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सॉरी सर। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ओके सर Okay. साइकी ठीक है। वर्ड ठीक हो? थैंक यू। अब जैसे आपने कहा कि मैंने आपको शायद बताया था, ध्यान से निकल गया होगा कि जिस भी शब्द में लोगस लगा हुआ है पक्का वो ग्रीक भाषा है। हाँ तो उसके साथ अगला ना भी पता हो तो लोगस तो पता था ना। जूलॉजी आपका है सब्जेक्ट, बायोलॉजी आपका है सब्जेक्ट, बायोस प्लस लोगस, जू प्लस लोगस। तो लोगस जहाँ भी आएगा वो प्रत्येक दशा में ग्रीक भाषा के ओरिजिन को दर्शाएगा। किसी भी जगह पूछा जाए तो दिमाग में रखिएगा। पहली चीज
दूसरी चीज जो आपने उत्तर दिया, यही मैं जानना चाह रहा था। 90% लोगों की आदत होती है, वो कह देते हैं हेल्थ इशू आया। आपको सीधे कहना कि यस आई सिक्योर्ड 83% मार्क्स इन माय 10th स्टैंडर्ड एंड after that I thought that marks are just going to get in an easy manner. I became slackness came into my career. I became a little just I should say comfortable in my studies. Then during graduation when I grew up I realized that I am not going on a right path, and after that I changed my viewpoint and finally the result is before you. I scored 91%. sir, ये तरीका होता है कि बीच में मैं उतना नहीं समझ पाई, गड़बड़ाया, शायद चाइल्डिश नेचर रहा होगा या जो भी कारण रहा होगा, लेकिन लेटर ऑन जब हाँ मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा, जब मैं स्वयं सोच के डिसीजन ले सकती थी, तो रियलाइज किया कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग ऑन राइट पाथ, आई मस्ट डू सम हार्ड वर्क। और उसके बाद मैंने मेहनत किया एंड द रिजल्ट इज बिफोर यू सर, आपके सामने परिणाम है। और ये भी कह सकती हैं कि वो बीएड की डिग्री टीचिंग की है और मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत है, इसलिए उसमें मार्क्स भी उसी तरह से हैं। आपने चूंकि साइकोलॉजी नाम लिया, इसलिए साइकोलॉजी से आपके सामने 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए और तीनों क्वेश्चन आप नहीं दे पाई, क्योंकि आपने कहा एक समय कि मेरा साइकोलॉजी में रुचि है, इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, और साइकोलॉजी में दनादन 3 क्वेश्चन पूछे गए और तीनों क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, एक चीज क्या है कि शुरुआत में जो बच्चे होते हैं उनको स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्किंग के द्वारा बच्चों को टीचिंग कराते हैं। भाई सर्वांगीण विकास कराना है ना, विकास में हार्ड वर्क कराते हैं, हार्ड वर्क के साथ साथ उनको स्मार्ट वर्क के साथ साथ कराया जाता है। तो एकदम आपको स्मार्ट वर्क को लेके नहीं भागना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के साथ भी पढ़ाते हैं। एक लाइन रट लीजिए, अगर कहीं फंस जाइए, जैसे ये इस क्वेश्चन पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात पे फंस जाइए, तो एक लाइन बस सीधे बोलिए, सर आई वुड डू हार्ड वर्क स्मार्टली, बस। ठीक है ना, वो भाषा से कई समस्याएं भी हल हो सकती है। आई वुड डू हार्ड वर्क स्मार्टली या आई शैल स्मार्टली डू हार्ड वर्क। ये आपका काम हो जाएगा कि हमने दोनों को समाहित भी कर लिया और दोनों का मान भी रह गया और दोनों अप्लाई भी हो गए। ठीक, कुछ रटे सेंटेंस भी कई बार काम आते हैं। बाकी इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से जा रही हैं और चीज़ें ऐसी लग रही कि अब सही दिशा की तरफ हैं। मेहनत तो आखिरी तक जब तक हो न जाए करते ही रहना है, बढ़ाते ही रहना है। थोड़ा सा जैसे साइकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, किसने पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ग्रीक बता ही दिया मैंने, तो ये ध्यान में उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ें काम करती हैं। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो इन सबके भी नाम टर्म पे थोड़ी जानकारी रहे। बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट है। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो ग्रुप बना है ना, उसमें क्वेश्चन डाल लीजिए, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, जब फादर कहते हैं, फादर अरस्तु हैं, शब्द का प्रयोग किसने किया? रुडोल्फ गालकाय ने किया, 1590 ईस्वी में किया। ठीक है, जो प्रश्न हो आप ग्रुप में डालिए, आपको उत्तर मिलेगा, जैसे कोई देखेगा वैसे उत्तर आपको देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। सही क्लास समझाना पड़ेगा।